Welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Brian Sikvara and these are the headlines. Will Goans be able to afford land in Goa? Land rates in Asagaon breaching 1 lakh a square meter sparks debate. Jammu and Kashmir sees around 60% voter turnout in its first elections as a union territory. No violence or incident witnessed at voting booths. Union Cabinet approves ambitious and controversial One Nation, One Election proposal, bill to be moved during Parliament's winter session. Now for the news in detail. Asagaon, once a peaceful village, has transformed into one of Goa's prime real estate hotspots. With buyers from Delhi, Mumbai and other metros snapping up property, land prices have skyrocketed to over 1 lakh rupees per square meter. But the pressing question is, can Goans still afford land in their own state? And what happens if this surge in inflated property rates spreads to other parts of Goa? Our reporter Nitiksha Gaonkar brings us the full story. आसगाव हो गांव उरूंक ना जाल्यार ते शहर जावपाक लागला. आयज आसगावान आमकां दिल्लीकारांचें राज्य पळोवपाक मेळटा. आयज जर आमी ह्या वाठारांत जागो विकतो घेवपाक वयशात जाल्यार 1 लाख पर स्क्वेअर मिटर अशी हांगा रेट आसा. आनी आयज आमकां ह्या वाठारांत दिल्लीकारांचें राज्य पळोवपाक मेळटा. आसगाव हो सुंदर असो गांव, फुलांनी भरिल्लो असो गांव. पूण आयज जर आमी हांगा पळयशात जाल्यार आसगांवकारांचें राज्य कमी जाल्यार भायल्या लोकांचें राज्य हांगा चड पळोवपाक मेळटा. मॅडम, आसगांव वाठारांत सद्या जी लँड रेट आसा पळय ती सद्या बरीच म्हारग आसा आनी हांगा आमकां चडशे दिल्लीकार पळोवपाक मेळटा. आसगांव पयलीं एक सुंदर असो गांव, पण आतां थंय दिल्लीकारांचें राज्य जावपाक लागला. तुमी शिवोले मतदारसंघाची MLA. इन शॉर्ट कितें म्हणटाय? What I am going to speak is a bitter truth. आमी गोंयकार कोण गोंयकार म्हणटात, but what is the bitter truth? What everybody has to accept. आता तूं आमचे बाय नितिक्षा, तुजे कडेन लँड आहा, प्रॉपर्टी आहा आसगांव. To whom will you sell? Tell me. To whoever is giving you the highest rate. Anybody. कळ्ळें तूं? समजलें? Which everybody does. कळ्ळें? आमी जेन्ना आमीच एक म्हाजे कडेन म्हण तूं 1000 स्क्वेअर मिटर जागो आनी हांव गोंयकार आनी हांव तो स्थानीक आसगांव गांवचो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. जेन्ना हांव म्हाजे प्रॉपर्टी विकता तेन्ना हांव म्हाजे गोंयकाराक विकतलें तुवें चिंतिना. हांव चिंतता म्हाका बाबा हो लँड कोण हायस्ट रेटान दिता पळय ते. सो this is whatever is happening not only in Asagaon but throughout Goa. आणि निमणे आमी म्हणटात पॉलिटिक्सान आमी उलयतात आमी गोंयकार म्हण सांबाळपाक जाय, आमी एक जागे गोंयकारांक विकपाक जाय. पूण एज इंडिविज्युअल म्हाजेच कडेन ना जाल्यार कोणा कडेन XYZ जागो आहा तो विकतलो टू द हायस्ट, तो दिल्लीवालो जावं नाल्यार तो लंडनवालो, वॉटेवर हुएवर इज गिविंग देम द हायस्ट रेट फॉर देयर लँड. एट दॅट टायम वी डोंट थिंक अबाउट गोंयकार कोण. फर्स्ट इट वॉज दोज रेट्स वर अराउंड कोस्टल बेल्ट. आतां कोस्टल बेल्ट सोडून म्हणल्यार बिचाचेर लोक ट्युरिस्ट इतले येतात आनी गर्दी इतले जाता. दॅट्स वाय these builders or this Delhi guys, they want to buy properties at little further away from the crowd. So they have started coming towards places which are closer to the coast also, but little far. So Asagaon is a beautiful village. We have the best of restaurant cuisine, so everything you get. So it's not only Asagaon, it is throughout happening, and what else I can say. Nitiksha Gaonkar, Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for Goa 365.
The Union Cabinet on Wednesday approved the ambitious One Nation, One Election proposal aiming to synchronize Lok Sabha and Assembly elections along with urban body and panchayat polls starting from 2029. This move, which has been part of the ruling BJP's manifesto for several years, promises a major overhaul of India's electoral process. However, the proposal has faced strong opposition and criticism. In a sweeping policy shift, the Union Cabinet has endorsed the One Nation, One Election initiative, which aims to align all major elections, Lok Sabha, state assemblies, and local bodies into a single electoral cycle. This ambitious plan, based on recommendations from a panel led by former President Ramnath Kovind, is set to transform India's electoral landscape starting 2029. आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है. हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election, on simultaneous elections, that those recommendations have been accepted today by the Union Cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे. उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे. जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो. बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक मिशन, बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है, वो ना हो. और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सबको एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे. और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है. पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी 2015 में अपनी 79th रिपोर्ट में कहा था गवर्नमेंट को कि सजेस्ट मेथड्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन 2 phases. इसीलिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी, the former president of India, and that committee extensively consulted a broad spectrum of stakeholders, including political parties, judges, constitutional experts, large number of experts from various fields. इन सब के extensive consultation के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट की थी. वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ये वेबसाइट आपके सामने रखा हुआ है और आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना. साइबर सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? सो एक्सटेंसिव फीडबैक से आया था कि देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री. देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री. इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 phases में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है. फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से, जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 days ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे. अब इस पे जो कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं उनको
पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा वेरियस फोरम्स में. वेदर इट इज आप सबका भी स्वागत है, आप सब भी इसके डिस्कशन में हिस्सेदार बने और सभी नौजवानों को, सभी जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं, सभी जो दूसरे जितने भी फेडरेशंस, ग्रुप्स, हर एक तरह के जो सोशल ग्रुप्स हैं, उन सब का हम आह्वान करते हैं कि आप सभी इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कीजिए, साइंटिफिक वे में डिस्कस कीजिए. कैसे वन नेशन वन इलेक्शन से इकोनॉमी को फायदा होगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को फायदा होगा, कैसे देश की प्रगति बढ़ेगी, कैसे देश का डेवलपमेंट बढ़ेगा, कैसे ब्लैक मनी का संचार कम होगा, कैसे कितने मल्टीपल इसके जो इम्पैक्ट्स हैं उन सब के ऊपर डिस्कशन करें और एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप उसके बाद में क्रिएट किया जाएगा, जिससे जो लीगल प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. Despite these advantages, the proposal has not been without controversy. Opposition parties, including the Congress, have expressed concerns about the practicality and implications of synchronizing elections. Critics argue that it could lead to the premature termination of state assembly terms and raise questions about the fairness and feasibility of such a sweeping reform. Subhashish Govekar and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And finally, for the weather. The deep depression over the Bay of Bengal has further weakened into a low pressure zone, putting Goa completely out of the danger zone. The weather here remains clear and bright, though slightly humid, and we expect these conditions to persist for at least the next week. However, IMD says that occasional rain spells are still possible, so keeping an umbrella handy is a good idea. On Thursday, cool westerly winds are expected, which should help ease the effects of higher humidity. Most areas will see highs around 32 degrees Celsius and lows of 24 degrees Celsius. No weather warnings issued for Goa until 22nd. Mostly dry weather with scattered showers likely. Maximum and minimum temperatures on Thursday 32 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. No warning issued for boat owners near Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.